Hello dear students, today we will discuss our new topic of chapter 10, refraction of light. Okay, and according to this we will discuss the first definition of refraction of light, then we discuss about reflection in a glass. Okay, and let's see one by one. This is second topic in chapter 10. There is total 3 topics: reflection in mirrors, refraction of light by through mirror, refraction of light, okay, by one medium to another medium, and reflection of lenses. Okay, then after that the most important topics are reflection of light by through the lenses. Okay, so first is refraction of light. Refraction means that in which the light is not reflected, bounce back. In our last class we are studying just these types of phenomenon in which the one incident ray inserted in a mirror and this bouncing back to the any direction, reverse direction. So this is known as reflection. Okay, but this is known as reflection. But we are already discussed in first class. Just like this is air, okay, and light coming from the any places. Okay, किसी भी प्लेस से लाइट आ रही है यहाँ पे, and then it is little reflected from the way. Okay, so this phenomenon is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, ये एयर है और ये वाटर है, तो इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. और ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे वाटर ही हो, ठीक है, यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, ऑयल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. देयर इज ओपेकली मीडियम. ओपेकली मीडियम का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम. देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय विच देयर इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देयर इज अ the light is continuously propagated. ठीक है, जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली प्रोपगेटेड हो रहा है. ठीक है, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है. मतलब समझ लो, अगर लाइट है, अगर लाइट जो होती है वो वैक्यूम में क्या होती है? एकदम सीधी जलती है वैक्यूम में. ठीक है, इन द स्पीड ऑफ 3 into 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड. ओके, बुक्स में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मीटर इन वर सेकेंड, जिसका मतलब ये होता है अगर लोग इसको नीचे लेके चले जाएंगे, माइनस में डालेंगे तो मीटर पर सेकेंड जाएगा. ठीक है, तो ये चीजें हैं. इस स्पीड से ट्रेवल करता है. बट व्हेन दिस इज अ स्पीड ऑफ वैक्यूम, ठीक है, जहां पर क्या होती है? एयर भी नहीं होता है, ऐसे प्लेस पे ये इतनी स्पीड पे ट्रेवल करती है. और एयर आने के बाद क्या होती है? एयर की गैप्स की वजह से जो स्पीड ऑफ ट्रेवल जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, and it is denoted by C. And when this is deflected, okay, so there is a propagation is little deflected also. Okay dear students, तो air में speed of light different होती है, water में speed of light different होती है, in different places speed of light is different. Okay, so according to refraction of light, when light is travel from one medium, just like example air, ठीक है, ये example है, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, to second medium, example water, then the direction of propagation of light in second medium changes. ठीक है, तो second medium में जो light का जो propagation होगा वो क्या हो जाएगा? little deflect हो जाएगा, change हो जाएगा. This phenomenon is called refraction of light. Okay dear students. Okay, now refraction of light through a rectangular glass slab. ठीक है, this is a glass slab and this is a denser medium. ठीक है, denser means that when you see inside of this, you looking like very darker. Okay, मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एयर जैसा हम लोग फाइनली देख पाते हैं, वो ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा सा ब्लर दिखता है इसके अंदर साइड. That means it is a denser medium. Okay, मतलब अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हैं और उसमें से थोड़ी देखने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, that means this medium is denser. Okay, so here is a this is a glass slab. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लास. दिस इज अ ग्लास स्लैब. ठीक है, एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम.
इंस्टेड ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास के इनसाइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, एंड द एयर मीडियम इज द रेयरर मीडियम, ठीक है, दिस इज एयर, in which air this is a air medium, that means there is a rarer medium, and this is a denser medium. Okay, so let's see what happened when light is inserting inside of the glass slab in a denser medium. What will be happen here? Okay, ये मैंने समझाने के लिए बस आपको लिखा था, ठीक है, बस यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एयर मीडियम, ओके, एंड इनसाइड ऑफ ग्लास इज अ एयर रेयरर मीडियम, ओके, एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। मतलब क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में जब भी लाइट क्या होगी, जस्ट लाइक लाइट, एंड लाइट इज कमिंग any light which is coming on this plate which is emergent from the same place, but when it is entering on the in which the light is coming from this two pins hole, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी नंबर कौन सी है, एक्टिविटी नंबर 10.10 is given, ठीक है, how the light is entering from rarer medium to denser medium, okay, the light is coming from the rarer medium EF, ठीक है, EF से होते हुए it is entering, that means the EF way, the light is coming on this way, okay, just like EO is an incident ray for this medium, when light is entering from rarer to the denser medium, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मीडियम 1 से जब लाइट की ओर एंटरिंग हो रही है मीडियम 2 पे, ठीक है, इसको मीडियम 1 लेते हैं, इसको मीडियम 2 लेते हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम द ईओ इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, जो ईओ है वो क्या होगा, इंसिडेंट रे, क्योंकि आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सो देयर इज अ एंगल, ओके, दो दिस एंगल इज I1 इंसिडेंट 1 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल R1, ठीक है, एंड दिस इज अ point at which the light is entering, and then after this light this ray is little deflected, ठीक है, ये जो लाइट है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो रेयरर में जो करेक्ट पाथ होता है उसे डिफ्लेक्ट होकर वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, एंड एट ए टाइम दे आर कमिंग ऑन अ इमर्जेंट प्लेस, ठीक है, जहां से ये बाहर जाती है, बाहर की तरफ जाने के लिए क्या होता है, देयर इज अ अगेन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब कि एट द प्लेस CD, ठीक है, CD पे क्या होगा, ये जो रेस होगी ये फिर से क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रेस हो जाएंगे, एंड इंसिडेंट होने के बाद दे आर रीचिंग फ्रॉम द टू दे आर एमर्जिंग फ्रॉम place 2 to 1, that means the refracted ray is 2, ठीक है, and the emergent ray is OH, ठीक है, तो ऐसे होता है आपका रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब, ठीक है, हियर पैनल में क्या हो रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की ओर एंटरिंग हो रहा है, ठीक है, तो एट द टाइम दिस इज इंसिडेंट रे 1 with the normal N, ओके, एंड रिफ्रैक्टेड रे R1 with the normal N, ठीक है, N जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे, जो नॉर्मल्स होता है वो यहाँ पर भी सेम यही चीजें होंगी, और ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड होने के बाद फिर ये कंटिन्यू रनिंग करती है, रन होने के बाद फिर कंटिन्यू मूव प्रोपागेट होने के बाद दे आर इंसिडेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ग्लास स्लैब, तो एट दैट टाइम द ग्लास स्लैब में जो पॉइंट है जस्ट लाइक O डैश, ठीक है, यहाँ पे जो रेस आएगी वो क्या होगी, इस पॉइंट के लिए वो इंसिडेंट होगी, ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर प्रोपागेट हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, लेट्स सी रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, Snell's law, and
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दोनों ही एक ही चीजें हैं। सो इन विच द इंसिडेंट रे, हमने जो पिछले डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसमें जो इंसिडेंट रे था, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे था एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक प्लेस से ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, और नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल बनता है आपका, ठीक है, नॉर्मल एट अ पॉइंट इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, जितने भी चीजें होती, जस्ट लाइक ये इंसिडेंस रे यहाँ पे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया एंड नॉर्मल, ठीक है, दीज आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में होगा। वैसे इमर्जेंट के लिए भी सेम हो जाएगा, ठीक है, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे हो जाएगा उसके लिए वो, और इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल लाइस ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन आई, एंड एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो एक क्या हो जाएगी आपकी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक नंबर वाली वैल्यू है, फिक्स वैल्यू आएगी टू द मीडियम अगेंस्ट ऑफ द सेकेंड मीडियम अगेंस्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम के अगेंस्ट जो सेकेंड मीडियम जो मिलेगा उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट एंड हियर इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो इसी को क्या बोलते रहते हैं, स्नेल्स लॉ एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आप कॉपीज में नोट कर लेंगे। Okay, now the refractive index. Okay, we are last topic discussed about the refractive index is a constant term which is a ratio of sin I upon sin R. Okay, like something more about refractive index. Okay, refractive index is denoted by just like here one medium, okay, medium 1 to medium 2, ठीक है, and light is coming on this way, okay, and there is medium, first one there is an angle of I, angle of R, okay, same like here I, R, I2, I1, R1, R2, okay. Here we will find out the actually refractive index is a speed of light will be changed, ठीक है, just like speed of light यहाँ पे किसी medium 1 से entering on medium 2, the light of speed will be changed, okay. So this is defined by through the constant term, okay. This constant term is known as refractive index. So let's see, let the speed of light in medium 1 is v1 and the speed of light in medium 2 is v2, okay. Then it can be defined as speed of light n/1, मतलब क्या होगा, refractive index is denoted by n/1, okay, and refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is denoted by the ratio of the speed of light in medium 1 divided by the speed of light in medium 2, okay.
तो दिस विल बी डिनोटेड एज अ, मतलब ये बोल रहा है स्पीड ऑफ जो लाइट है वो 1 से 2 मीडियम में एंटर कर रहा, तो दिस कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय थ्रू द v1 upon v2. Same against opposite, same for the refractive index of medium 2, so refractive index of medium 1 with respect to medium 2, it can be denoted as n12 and opposite of this one. ठीक है, एंड सेम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो क्या हुआ देखो, पहले लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इस कैन बी डिनोटेड एज 2 1, ठीक है, मतलब लाइट 1 से 2 में एंटरिंग हो चुकी है, ठीक है, तो इस कैन बी डिनोटेड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय v1 upon v2. एंड व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, तो इट कैन बी डिनोटेड एज सेम थिंग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे बस अपोजिट हो जाएगा, बस इसको अपोजिट लिखेंगे, ठीक है, तो दिस वन इज डिनोटेड बाय मीडियम अकॉर्डिंग टू द 2 1 and 1 2, ठीक है, तो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड व्हेन क्या होता है, व्हेन इफ मीडियम 1 इज अ एयर और वैक्यूम, ओके, मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम एंड एंटरिंग इनटू मीडियम 2, then it is called refractive index medium 2 with respect to एयर और वैक्यूम is called absolute refractive index मीडियम, ठीक है, तो याद रखेंगे एब्सोल्यूट इंडेक्स मीडियम एट दैट टाइम मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is simply denoted as a c, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is c and speed of light in medium 2 is v, ठीक है, तो it can be denoted as the absolute refractive index is denoted by n m, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय nm एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, इट कैन बी डिनोटेड बाय cy
v. This is a absolute, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, एंड मीडियम will be become denser and denser, the light of speed is become slower. ठीक है, and in a table 10.3 absolute refractive index of different mediums is given. Please remember it. Okay, and this will be helpful in your numerical. Okay dear students, in the next video we will be studying our last topic of this chapter. This is reflection by through the क्या बोलते हैं आपके lenses. Okay.